Hello students, how are you? I hope you are doing well during this time. You are staying at your home and you are trying to give your full dedication to your online classes. Right now, by staying at your home, you are completing your homework, sending to your subject teachers and many other activities you are doing. Keep doing in this way because very soon you are having your annual examination. Yes, that's a very important thing for you. Okay, every class having every year annual examination, and that's play a vital role in a life of our students. Okay, students. So, students, let me introduce myself. This is host. This is your subject teacher, Viren, and I'm your computer science teacher. Today we are going to have a most important session for you, and that session is related to your revision class. Yes, right now your chapter number 5 is already finished, and this is the time to have a proper revision session for that. Okay, so in today's class we will take the revision of the some of the topics, and that topics are already finished. Okay, and I will take this class in a theoretical class manner. Okay, not in practical demonstration manner, because for the practical already the video is uploaded, you can watch. Okay, and I will try to share the link of that videos in the comment box. राइट, आप नीचे देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा और उस लिंक को देखने के बाद उसे आप प्ले करके देख सकते हैं कि कौन कौन से पुराने वीडियोस हैं. ओके, वन मोर थिंग, आपके लिए मैंने यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं आपकी क्लास के लिए, वो सारे वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में डाल रखा है, और मैं आपका उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक के सारे वीडियोस आपको मिल जाएं और उन वीडियोस को बारी करके आप देखना स्टार्ट करें. आपके नोट्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करें, अगर पेंडिंग है तो उनको पूरा करें और पूरा करके उनको आप मेरे तक पहुंचाएं. ओके, अगर आपके नोट्स में कुछ कमियां होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको उसको मेरे तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप कमेंट और यूट्यूब कमेंट का यूज करिए आप. ओके, एंड वन मोर थिंग, यू कैन आल्सो यूज द गूगल क्लासरूम. Okay, by using the Google Classroom you can just upload it each and everything. So students, बहुत सारी बातें हो गई हैं अब, और अब समय आ गया है कि आपके इस रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया जाए. आज के इस रिवीजन क्लास में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो टॉपिक है आपका दिस वन. सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट हम देखेंगे, और हमारे चार्ट के जितने भी कंपोनेंट हैं we'll try to study each and every component. Okay, likewise chart area, category axis, value axis, data series, category name, plot area, legend, chart title and grid lines. Okay, so इस तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, और आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह का डाउट ना आए. फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप निसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं. ओके, सो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज चार्ट. What is chart? Let me write the definition and then we will try to elaborate the every word of the definition. Okay? So just be online, stay watch. Okay? Keep watching my all the other videos also. Okay? और इस चार्ट की क्या definition है उसको मैं अब इस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ मैं. Okay? Please इसको आप ध्यान से watch करिए. It is the pictorial representation of data
Excel sheet is called chart, right? There is one more definition, एक और इसकी definition है, the graphical representation of data which is available in Excel sheet is called chart. ओके, अब मैं आपको एक एक वर्ड में समझाने जा रहा हूं आपको इसकी क्या डेफिनेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट जाने के बाद आप एक ग्राफ पेपर को परचेज करते हैं। जब आप ग्राफ पेपर को परचेज करते हैं तो देखा होगा उसमें कुछ माइनर से कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो माइनर जो सेल्स हैं, जो माइनर लाइंस हैं, वो है क्या? वो भी एक चार्ट का कंपोनेंट है। यस, वो भी एक चार्ट का कंपोनेंट है। ओके, और उस कंपोनेंट को हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। हम इसके बारे में आगे हम जानेंगे हम। ओके, अभी हम सारे ध्यान इस प्रैक्टिकल जो हमारे इसके चार्ट की डेफिनेशन है हम उसकी बात करेंगे। लिखा हुआ है इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, मींस जो डेटा आपके पास पहले से एक्सेल शीट में आपने बनाया है उसी डेटा को आप पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं। उसी डेटा को आप पिक्चर्स की फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब जब वो पिक्चर तैयार हो जाएगी तब आप कहेंगे कि हाँ मेरा चार्ट बन गया। ओके, आते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ। लिखा हुआ है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, यानी कि आप अपने ही डेटा जो डेटा ऑलरेडी आपका एक्सेल शीट में अवेलेबल है उस डेटा को आपने एक ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। हम ये जो चार्ट है इस चार्ट को बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं। इसका जो एडवांटेजेस है वो क्या है भी हम देख लेते हैं, क्या यूज है उसको भी समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, और यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ मैं एडवांटेजेस ऑफ चार्ट। एडवांटेजेस ऑफ चार्ट, इसमें आपको जो पहला पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर ट्रेंड एनालिसिस over a period of time, इसी में हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को, it is used for comparison purpose. Okay, third point, it is used for analysis of data to explore or to present the data in front of ऑडियंस। ओके, ये मेरे कुछ एडवांटेज देते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ इसको।
ओके, इसमें से जो पहला पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर ट्रेंड एनालिसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी तरह का ग्राफ बनाते हैं, चाहे वो बार चार्ट हो या फिर आपका कॉलम चार्ट हो या फिर आपका यहाँ पर पाई चार्ट हो, स्कैटर चार्ट हो, बबल चार्ट हो, ठीक है, कई तरह के चार्ट होते हैं। आप जब भी किसी तरह के चार्ट की बात करते हैं तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है या डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ओके, जब हम इसको अपने इस ग्राफ की वजह से हम एनालिसिस करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। किस तरह का ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, किस तरह का जो डेटा है वो आपको परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं। ओके, नाउ with this now I'm coming to the point number 2. पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। यस, अगर आपने कोई लाइन चार्ट का ही यूज किया है और एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ग्राफ ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप उस चार्ट को देख करके बता सकते हैं आप कि वो लाइन आपका उसका इंक्रीजिंग की तरफ है और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो डिक्रीजिंग की तरफ है। ठीक है, कि आपका डाउनग्रेड हो रहा है, वो आपका अपग्रेड हो रहा है या आपका डाउन हो। तो हम सब कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। जैसे दो कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज में आप अगर देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस किसकी बेटर है, जो लाइन ऊपर जा रही है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है, जो लाइन नीचे जा रही है उसकी परफॉर्मेंस नहीं बेटर है। ओके, नाउ विद दिस लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। Whenever you are having any kind of pictorial data or you can have a chart, at that time you are trying to analyze it properly, so that if you want to elaborate in the presentation also you can just elaborate it in a good manner in front of the audience. Okay, if you want to present the data, okay, about the chart using the presentation, okay, then you can have it. Okay, so these are the three advantages of the chart. Now students, it's time to come with new type of your topic, that is components of chart. Okay, so let's erase the board and then we proceed further in a short while. Okay, so कहीं मत जाइएगा, मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिए और यहाँ पर अब जो टॉपिक है जिसको रिवाइज करेंगे वो है हमारा कंपोनेंट ऑफ चार्ट। तो कहीं मत जाइए, विल बैक वेरी सून। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक की जो भी चर्चाएं हमने की हैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपका कोई डाउट भी है, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डाउट आपका सक्सेस नहीं हो, आप अदर एप्लीकेशन से रिलेटेड भी डाउट आप पूछ सकते हैं, आप जो भी आपके अदर चैप्टर्स हैं। ओके, योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कंपोनेंट ऑफ चार्ट की तरफ। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक अभी आपके लिए चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट को बनाने के बाद फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। ओके, चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से ड्राइंग कर रहा हूं। यहां पर ये हो गया आपका चार्ट एरिया, ये आपका हो गया चार्ट एरिया। ठीक है, अब हम इस चार्ट एरिया में यहां पर लिख देता हूं मैं, ये पूरा का पूरा हमारा कहलाएगा चार्ट एरिया। ओके, पूरा एरिया, इसका मतलब ये हुआ द चार्ट एरिया इज दैट काइंड ऑफ एरिया व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ योर चार्ट, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर चार्ट। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसका कि जो चीजें इस्तेमाल होती हैं चार्ट में। एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने दो चीजें बनाई हैं। ये आपका होगा कैटेगरी एक्सिस, इसका नाम क्या हो गया? कैटेगरी एक्सिस, ये हो गया। और ये आपका जो वर्टिकल एक्सिस है इसी को हम बोलते हैं वैल्यू एक्सिस। ओके, इन्हीं वैल्यूज पे, इन्हीं हम आपके एक्सिस पे अपने डेटा वैल्यूज
को प्लॉट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये जो मैंने प्लॉटिंग की है ये डेटा वैल्यू से, इसी डेटा वैल्यू की हेल्प से हम ग्राफ को बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे कुछ बार्स बना देता हूँ। मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे बार्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ये मैंने कुछ छोटे छोटे बार्स बना दिए। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे और भी ड्राइंग कर देता हूँ आपके लिए। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर अभी तक जो हमने बात की है वो बात की चार्ट एरिया की। चार्ट एरिया के अंदर ही हमने क्या बनाया है, यहाँ पर हमने चार्ट बना दिया। सो आपका ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने को हम बोलते हैं प्लॉट एरिया। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं निशान तो नहीं बनाऊंगा, आपको जैसे ड्राइंग में खराब हो जाएगी। आप यहाँ से देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, whatever the area I'm using to make the chart, that particular thing is known as plot area. Okay? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि चार्ट एरिया के अंदर ही आपका प्लॉट एरिया आपका आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। ओके, अभी तक क्या बात की, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, कैटेगरी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस। अब हम बात करते हैं ये कैटेगरी, इसे हम बोलते हैं डेटा सीरीज। ये जो आप देख रहे हैं इन सबको हम बोलते हैं डेटा सीरीज। दिस इज कॉल्ड डेटा सीरीज। अब ये डेटा सीरीज क्या है, जो भी वैल्यूज आपने अपने टेबल में रखी है उस टेबल में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की मदद से यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिंबल्स बनाए गए हैं, कुछ डिफरेंट स्लाइसेस यूज कर सकते हो, कुछ डिफरेंट बार्स यूज कर सकते हैं। ओके, दैट ऑल थिंग्स आर नोन एज डेटा सीरीज। मतलब ये हुआ कि the pictorial symbols, slices or bars which are used to represent our data value, that is called data series. Okay? अच्छा, डेटा सीरीज के बाद अब हम बात करते हैं कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी एक लेबल इस कैटेगरी की वाई एक्सिस की, ये वर्टिकल एक्सिस की मैंने नाम दे दिया। सपोज करो मैंने यहाँ दे दिया है मार्क्स, यहाँ मैंने दे दिया मार्क्स। ओके, अब मैंने इसकी लेबलिंग कर दी। इसी तरह से यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, इसकी एक लेबलिंग कर देता हूँ मैं। इसका नाम मैंने दे दिया है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ओके, अब इसकी जो फॉर्मेटिंग है, आप जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, whatever the components you are able to observe on this chart, that each and everything is able to format it by using the options which are available in that your Excel sheet. ओके, आपको पहले से पता है कि जब आप चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते ही 3 नए टैब्स अपीयर हो जाते हैं। ओके, when we are making a chart, 3 new tabs are automatically appears। They are कौन से हैं ये? पहला हमारा है डिजाइन टैब, ये ऑटोमेटिकली अपीयर होता है। दूसरा हमारा है लेआउट टैब और थर्ड हमारा है फॉर्मेट टैब। ये 3 तरह के टैग हमारे सामने अपीयर हो जाते हैं। ओके, सो इस चीज का ध्यान रहे, आप जिस भी तरह की आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप फॉर्मेट टैग का यूज करें। कुछ लेआउट आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं आप, या कुछ आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग टैग्स को यूज कर सकते हैं।
ओके। और यहाँ पर जो शीट, आप जिस शीट की हेल्प से आप ग्राफ को बनाते हैं ना, उस शीट को बोलते हैं डेटा शीट। यस, प्लीज रिमेंबर, जिस शीट की हेल्प से आप बनाते हैं आप एक ग्राफ को, उसे हम कहते हैं डेटा शीट। ओके, तो इतनी हमने बात कर ली है। हम देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हमने अभी तक बात की है। सो राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, डेटा सीरीज, कैटेगरी, प्लॉट एरिया। हमने यहाँ तक हमने हर एक कंपोनेंट्स की बात की है और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये सारा कुछ ग्राफ में आपको दिख गया होगा। ओके, और अच्छे से जरूर समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल में किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर रहे होंगे और मेरे इस वीडियो को सही तरीके से देख रहे होंगे यार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे हमारा है रीजन्स। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग बार्स हैं। एक बार थोड़ा सा आपका अलग तरीके का है और जो दूसरा है वो ब्लैंक है आपका। ओके, हम इसी बार्स को सिंबल्स के रूप में यूज करेंगे और उसको हम बताएंगे ये है क्या, उसको हम बताएंगे ये है क्या। सो मैंने यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पर मैं एक मैंने बना दिया ब्लैंक के लिए और एक मैंने बना दिया यहाँ पर ऐसे रखते हैं। ये जो ब्लैंक वाला है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो आपका दूसरे फॉर्म में हुआ वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये आपका हो गया, मान लेते हैं मैथ्स के लिए और ये मान लेते हैं कि ये साइंस के लिए। ओके, सो ये जो आपका बन गया है इसी को हम बोलते हैं लीजेंड्स। तो लीजेंड्स का मतलब क्या हुआ? लीजेंड्स इज नथिंग बट इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न, स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिंबल्स that are used to represent your data series, values of the data series. डेटा सीरीज जो आपको देख रहा है उसी डेटा सीरीज को ही वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो वो आपका कहलाएगा लीजेंड्स। ओके, अब हम बात करते हैं हम चार्ट पैटर्न की। सबसे आसान कंपोनेंट है ये चार्ट पैटर्न, मतलब जो आपने बनाया है ये जो आपने बनाया है इसका एक नाम रखते हैं। जो भी चार्ट है यहाँ पर टाइटल में टॉप पे रखेंगे हम और इसका नाम रखते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस। इसका नाम रख देते हैं हम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम इसी को हम कहेंगे यहाँ पर चार्ट टाइटल, इसको हम बोलेंगे चार्ट टाइटल। ओके, अब हम बात करते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन, तो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट होते ही कि जब आप मार्केट जाते हो और मार्केट जाते ही आप परचेज करते हैं ग्राफ पेपर को। So whenever you are purchasing your graph paper, at that time you are able to see some minor lines. Okay, some vertical lines as well as some horizontal lines. Then all lines are called grid lines. Okay, so grid line is of two types. जो grid line है वो दो तरीके की होती है। Grid line is of two types. First one minor and second one major. So अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर आपकी वर्टिकल लाइंस दोनों में से कोई भी या दोनों, अगर वो बहुत दोनों दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो वो माइनर लाइन हो जाएगी, और अगर दो लाइनों के बीच में अगर आपका यहाँ पर जो डिस्टेंस है ज्यादा है वो आपका मेजर लाइन हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप वर्टिकल लाइंस ले रहे हैं या हॉरिजॉन्टल, ये दोनों ही ले रहे हैं। जब आप मार्केट से खरीदेंगे वहां पर आपको दोनों ही लाइन मिलेंगे, वर्टिकल्स भी और हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ ग्राफ पेपर पे अपनी मर्जी से आप उसको आप शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखा होगा किस तरीके से आपका यहाँ लाइनें खींची होती हैं, यहाँ पर वर्टिकल लाइंस। तो अगर दो लाइनों के बीच में अगर कुछ ज्यादा ही गैप है तो आप समझ जाइए कि वो मेजर है, और अगर गैप बहुत कम है तो आप उनको बोलिए कि वो माइनर लाइंस हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेस ऑनलाइन क्लास and I definitely sure today you have entertained, enjoyed a lot. Okay, so अभी भी एक क्वेश्चन आपके लिए, आप कहीं मत जाइएगा, मेरे इस क्वेश्चन को जरूर सुनिए और इसका आंसर जल्दी से जल्दी YouTube कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि जब हम चार्ट बनाते हैं, चार्ट बनाते समय हम अगर ये पूछें कि where is data sheet located, how we are going to locate your data sheet. ओके, यही मेरा क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी आपने YouTube कमेंट का
इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें और इसका आंसर दें आप। ओके, सो राइट नाउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप अप्रिशिएटिंग मी एंड कीप अपलोडिंग मी, ओके, एंड कीप वाचिंग माय ऑल द वीडियोस। ओके, अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इस चैनल को आप उसमें जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें आप, क्योंकि बेल आइकन आपको देगा एक नोटिफिकेशन और उससे पता चलेगा आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स। ओके, सो थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।